Welcome again, brothers and sisters. Good morning, everyone. Again. Today, the message sharing will be some in different way. There will not be a main sharing today. All brothers and sisters can share, have opportunity to share today. Basically, in this 6 months during the time of pandemic, this never happened earlier. It is across all the world, and what people are facing and experiencing so many things in their life during this time. So I don't think the world might know the God's plan in this, but Bible says all things work together for good for those who love God. So I believe many of us have really experienced that in our life during this time of pandemic. So it's time now to share briefly about what God has been doing in your life. Basically, in practical ways also, practical things like in day to day your life, what God has been doing, and secondly, spiritual. So 2 points you can discuss. You have a minimum of 4 minutes without translation. So I would like to give opportunity to everyone, and mainly for those who have never shared earlier. So would like to hear from all of you. So brother Matthew will start, and then one by one we can start without delaying. So brother Matthew can start. So during this 6 months of this pandemic, which is very unusual, uh, none of us has faced this in our lifetime, and so I was in my it was in my prayer to asking God, Lord, teach what are you teaching me something during this time. So of course, the Lord has been working in these 6 months in each of our lives, and in my life, He has taught me different things. One practical thing, very simple thing. Uh, See, I used to be very conscious of my clothes. I would get them ironed uh, and wear a number of shirts and pants and jeans and all that. But during this time, I've learned that any shirt is okay to go out. And first of all, ironing is not, the people who used to iron is not there and all that. And so the shirts which I normally would not use, those were the ones which I would normally be using during this period. So simple things like that. Even cotton trousers, which you really need some iron, crumpled one. Just wear out and go and buy things, because nobody is bothered in these days about how people look, how smart they. So this is one thing just very unusual for my life. Of course, there are so many other things, but I'm just taking one. Now, the other thing which God taught me in my life during this time, I can say, particularly stressed upon in my life, is about that I should be a nothing. See, because I always consider myself as I am something, and people should have some opinion about me and all those things. Which is the Word of God says in Galatians chapter 6 verse 3. It says, if anybody thinks he's something when he's nothing, then he deceives himself. So actually, I am nothing. So I want to be in that place. And then also it says in 2 Corinthians 11, 2 Corinthians chapter 12 verse 11, it says that Paul says he's a nobody. Yeah, so I want to be a nobody. That came very powerfully to my life. And also the Moses, who was very effective in his younger years, when God took him to the wilderness after 40 years of being a shepherd. When God told him that you must lead the people, he said, who am I? Who am I to do this? So he came to that place, of nothingness. So this is one place which God has impressed upon my heart, and my heart desires to be a nothing. Amen. लाइफ में जो मैंने इन दिनों में देखा, जो पेंडेमिक के टाइम पर, एक तो है मेरे फैमिली के ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं हमेशा आता था, फिर चले जाता था काम के लिए, फिर आने के टाइम वो सब सो जाते थे। तो अभी ज्यादा समय उनके साथ बिता सकता हूँ और ज्यादा समय उनके साथ बातें कर सकता हूँ, जहाँ पे मोस्ट ऑफ हम अभी प्रे कैसे करना है, क्या करना है, बाइबल टीचिंग कैसे रहता है, और हर चीज हम मिलकर डिस्कस करते हैं और प्रभु के बारे में और जानने का एक उत्सुक मैं परिवार में देख सकता हूँ। तो दैट इज अ बिग थिंग इन माय फैमिली, प्रभु ने किया है इन दिनों में।
जाके सबके अंदर प्रभु के लिए चाहत है और दे वांट टू वॉक विद गॉड, आई कैन सी इन देयर लाइफ। और दूसरी एक चीज है डिसिप्लिन जो लॉर्ड ने मेरे लाइफ में लाया है। तो पहले जब मैं आता था ऑफिस से तो बहुत लेट हो जाता था मेरे आने के, घर पे आने के टाइम पे कभी कभी 11:30, 12, 12:30, तो मैं उठने के टाइम बहुत लेट हो जाता था, 9:30, कभी कभी 9:45। तो ये लाइफ मेरे को बहुत अजीब सा लगता था कि इतना लेट उठता हूँ और ये करता हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश किया कई बार जल्दी उठने के लिए, हो नहीं पाया। और तब मैं ये बहुत टाइम से ये प्रे कर रहा था कि लॉर्ड एक मेरे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है जहाँ पे मैं उठ के सब काम फटाफट कर सकूं, नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो बहुत टाइम से प्रे कर रहा था, लेकिन ये पेंडेमिक के समय अ, अभी मैं घर से हूँ, घर से काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे उठने के लिए सहायता करते समय पर मैं प्रार्थना करके सोचा। एवरीडे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एवरीडे 7 o'clock के पहले ही गॉड मुझे उठा देते हैं, और ऐसा ऐसा लगता है एक साथ मेरा नींद पूरा चला गया और एकदम फ्रेशनेस फील होता है, और उठ के फिर मैं अपना काम अच्छी तरह कर सकता हूँ। तो ये इन दिनों में मैंने एक चीज देखा कि मैं जल्दी से उठ पा रहा हूँ और सब कुछ मैं अच्छा फटाफट कर सकता हूँ, तैयार हो सकता हूँ, और मेरे काम भी मैं अच्छी तरह कर पा रहा हूँ जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था। एक डिसिप्लिन मेरे लाइफ में ये चीज को लेके नहीं था जो प्रभु ने इन दिनों में ये किया है। और ये भी चीज मैंने सीखा, ये ओवर ईटिंग होता है जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत बढ़ भी गया था। और मेरे को ये पहले पता नहीं था, ऐसे ये खाना पीना इसके ऊपर भी एक लस्ट होता है, लेकिन मैंने जैसे ब्रदर्स लोग ने जैसे शेयर किया था तब मैंने सीखा ये चीज, और मैंने ये भी डिसिप्लिन मांगा गॉड से कि मेरे ईटिंग हैबिट में भी प्रभु मुझे डिसिप्लिन चाहिए, और वो अभी मैं अपने लाइफ में देख पा रहा हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का आभार मानता हूँ। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको एक सूचना देने, इंफॉर्मेशन। सो देयर विल बी अ बजर ऑफ इन्फो, जैसे आपका 4 मिनट होने आएगा एक बजर बजेगा। सो ट्राई टू एंड योर स्पीच इन दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड। थैंक यू। Hope you're all doing well by the mercies of the Lord. I thank the Lord for this wonderful opportunity that God has given for each one of us to meet and encourage one another. So I generally I often think like I know very little. All brothers and sisters are well versed in Scripture. What is there to encourage from my side? But this morning, the Romans 1:12, where Paul writes to the church at Rome, saying that I desire to see you all, not only to encourage you, but also to be encouraged by your faith. So I think by our faith that we have exhibited during this pandemic can encourage each other. So for me, I think, as brother mentioned, like Romans 8:28, that God will make everything to work together for the good of those who love Him. I think that came true for me, and I believe it's true for most of us. So one, spiritually, we are able to connect more. Probably we are able to spend a little more time with the God, with the Word of God, and in prayer, and also in fellowship. And even in practical terms, what I learned is to stay calm, be at rest, because God is in control of everything ultimately. So just a small incident, like even at my workplace, some time back, a couple of my colleagues tried to downplay out of jealousy, but I just accepted it. So ultimately, even it eventually turned out for my good in front of the management. So if we really surrender to God and if we accept His will is the best for us, definitely it will work for our good. I think practically, see, like I used to take at least an hour, 1 hour, 1 hour, like 2 hours a day just for commuting, even though I have my own car, sometimes because of traffic. Sometimes even it used to take more than 1 hour just for one-way commute. I think that was avoided. So there's a lot of rest physically also. And even in terms of environment, so even the air quality index also shows there's been improvement in air quality, at least for the first 3 to 4 months. So from an environmental background, that's also positive thing I could see. And even as brother mentioned, I'm able to spend more time with the family. Now with the small child at home, I think
that's definitely a positive side for me. Yeah, so but overall, I think I could say that it all turned out to be for my good. I praise God for this wonderful experience. I think I don't know, it could be like one time in century. I heard this kind of pandemic happened in 1918. So now it's almost after 100 years this happened. So let us all thank the Lord for this wonderful experience that we all went through. Thank you. God bless you all today. The experience to have in these days, that way, what we went through. First of all, I want to thank God, because for me, if I see, I'm almost like 2 years without a job. When my contract got over, it was like almost a year. But God kept me safe throughout that. When He sent me back home, it was only because He wanted to protect me, because I am the only bread earner of my family. So God knows the plans for me and my family. So He sent me back, keeping me safe. I was supposed to go back on March 16. So if you count from March 16, where I'm supposed to go back in October, in November 16, that's another seven months. So the 7 is a very sufficient number in the Bible. Only because God wanted to protect me, He has kept me home, but He provided all the good things to me. So I want to thank God for this, and He brought me more closer to Him, knowing who He is, what His love is there for us, and how He cares and how He provides the one He loves. And the key thing to all this, there are 3 keys to the kingdom of God. And that I learned is where it says in Job 22, from verse 21 to 23, if you read, there are 3 keys to this. The first key is in Job 22, verse 21, agree with God and be at peace, therefore good things will come to you. The first key is, he says, agree with God and be at peace with Him, and good things will come to you. And the second key, in the same chapter, verse 22, receive the instructions from His mouth and lay up His word in your heart. This is the second key that He gave to have His instruction in our heart. And the third key, in same Job 22, verse 23, if you return to the Almighty, you will be built up. So these 3 keys were very important for me in this time, that to have peace with Him, to lay His word in our hearts, and He is building us. I did some few videos. I preached some verses. I thank God for this moment that I was able to come close to Him, to know, and He strengthened me. And most of all, He protected me, actually, I would say, throughout this time. But as the world is coming back into their home, God is sending me back into the world. Thank you. God bless you all. परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि पहला तिमोथी 3:5 में इस तरह लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना नहीं जानता हो तो परमेश्वर के कलीसिया को रखवाली कैसे करेगा। ये वचन मुझे चैलेंज किया, और ये लॉकडाउन में परमेश्वर मुझे यही सिखा रहा था कि मेरा फैमिली को, मेरे बच्चों को किस तरह मैं संभालूं, जो घर का जो जिम्मेदारी है तो किस तरह से मैं करूं। तो ये इस लॉकडाउन के अंदर मैं सीख रहा था, परमेश्वर मुझे सिखा रहा था। मैंने देखा कि ऐसी मेरे लिए बहुत आसान था, मुझे 8 घंटा मैं ड्यूटी करूं, अपना ऑफिस जाऊं और घर पे आऊं, और थोड़ा टाइम, समय बहुत कम मिलता था फैमिली के साथ में, बट वो मेरे लिए आसान था। मैं ऑफिस में मेरे को टाइम मिलता था बाइबल पढ़ने, ये सब करने के लिए। बट मैं देखे कि मेरा फैमिली के साथ मेरा एक एग्जाम्पल बनकर जीने के लिए मेरे लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा था।
अब ये लॉकडाउन में मैं प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु मुझे सिखा रहा था कि मैं वाइफ के साथ किस तरह रहूं। वाइफ, मैंने देखा कि एक स्त्री का ऊपर कितना जिम्मेदारी है घर पर, बच्चे को संभालना, घर का काम करना और टिफिन बनाना, काफी सारा चीज हम देखते। वो मुझे पर्सनली मुझे देखने के लिए मिला कि वो लोग कितना स्ट्रगल करते, कितना सारा मेहनत करते बच्चों को लेकर और हमारा खाने को लेकर खुद को ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब मुझे देखने मिला और परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि इसमें किसी ने ऐसा कहा कि अगर एक मसीह जीवन हमारा हस्बैंड वाइफ है तो ऐसा नहीं कि 50-50 है, तो बच्चे को संभाल मैं अपना काम करूंगा, ऐसा नहीं है। बट लेकिन उसने ब्रदर अच्छा बोला कि हमारा लाइफ जो है 100% है। अगर मेरा वाइफ नहीं कर रही है, मेरा जिम्मेदारी बनता है, मेरे को करना है। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा वाइफ की जिम्मेदारी है 100% वो करना है। ये 100% है, 50% ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा मसीह लाइफ के अंदर तो परमेश्वर मुझे यही सिखाया कि बच्चों को किस तरह ट्रेन करूं मैं। मैंने देखा कि कितना मुश्किल है बच्चे लोग को ट्रेन करना, बच्चे लोग को गॉडली वे में बढ़ाना, उनको डिसिप्लिन करना। मैं बोला लॉर्ड प्लीज मुझे तेरा ग्रेस दे, मैं सीख रहा था। ये जो लॉकडाउन के अंदर प्रभु मुझे वही सिखा रहा था कि मुझे प्रभु मुझे ग्रेस दे ताकि इस बच्चों को मैं बढ़ा सकूं, बच्चे को गॉडली वे में बढ़ा सकूं। जैसे आज ब्रदर सैम ने व्हाट्सएप पे कोट किया था वचन कि परमेश्वर अपने बच्चे लोगों को इस तरह से आगे बढ़ाओ जो अंत तक वो अपने परमेश्वर के मार्ग से ना भटके। तो ये मेरे चैलेंजिंग है। परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि एनी सुजैन उनका जीवन को मुझे ट्रेन करने के लिए, और मुझे सिखा रहा था कि मेरे अंदर कितना कमजोरी है, मैं कितना कैपेबल नहीं हूँ, मैं कितना सारी चीज में मैं नहीं कर सकता हूँ। तो प्रभु मुझे यही सिखा रहा था कि मुझे तेरा ग्रेस की जरूरत है। मुझे पता नहीं कि बच्चे लोग किस तरह डिसिप्लिन करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो मैं प्रभु से मांग रहा था लॉर्ड मुझे ग्रेस दो, मुझे समझ दो कि मैं कितना डिसिप्लिन करूँ, कितना उसको किस तरह से डिसिप्लिन करूँ, कितना करूँ। तो ये सब मैं सीख रहा था। परमेश्वर को धन्यवाद हो, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ इस लॉकडाउन के अंदर, बट अभी भी वो प्रोसेस है सीखने में। और मेरा वाइफ को जैसा फर्स्ट पीटर 3 में 7 में लिखा है कि परमेश्वर जो हमारे वाइफ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग वे में हमको जीना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फेलो हेयर है, हमारा फेलो हेयर है, ताकि तुम्हारा प्रार्थना हम जो करते हैं वो रुक ना जाए। तो ये लॉकडाउन में मैं सीख रहा था लॉर्ड मैं अपने वाइफ को समझू, मैं वाइफ को समझू, उसके काम में हाथ बांटू, 50-50 नहीं बल्कि 100%। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मुझे ट्रेन कर रहा है, सिखा रहा है मुझे, और परमेश्वर मुझसे प्रेम कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। और मैं इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिला। मैं प्रभु ने सिखाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। I remember that I'll try to speak in Hindi in between so that everybody can understand. मैं हिंदी में बात करूँगा बीच में। जैसे मैं पहले ऑफिस जाता था तो हमारी कंपनी में पॉलिसी है कि वर्क फ्रॉम होम, there was a work from home policy in a company where if employees want to work from home they need to take a special approval, HR approval, management approval, lot of things. And I was also desiring when will this, when it will be like work from home will be convenient to get. In IT companies में ऐसा होता है कि घर से काम कर सकते हैं, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं ऑफिस जाना ही, वहाँ जाके भी कंप्यूटर में ही काम करना है और यहाँ घर पे बैठ के भी कंप्यूटर पे ही काम करना है। तो क्या फ़र्क पड़ता है ऑफिस में जाए या घर से काम करें। तो IT कंपनीज में ऐसे पॉलिसीज़ है कि अप्रूवल लेके काम किया जा सकता है। तो लेकिन हमारे ऑफिस में यहाँ पर इंडिया में ये पॉलिसी ऐसे नहीं थी, बहुत रिस्ट्रिक्शन था और स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। और यूएस वालों को, वो लोग हमारे एम्प्लॉयज़ यूएस में जो है कंपनी के, उनको तो मतलब once or twice a week when they wish they can work from home, घर से काम कर सकते हैं यूएस एम्प्लॉयज़। तो जैसे लॉकडाउन के बाद जैसे इमीडिएटली सब शट करना पड़ा और घर से काम करना पड़ा, तो सडनली रियलाइज़ हो गए कि मतलब घर से भी काम हो तो रहा है, लेकिन घर पे और ज़्यादा डबल काम बढ़ गया है। घर पे जैसे
काम ऑफिस का भी करना है और घर का भी काम करना है, और इससे फ्रस्ट्रेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैंने भी बहुत ग्रम्बल किया, कंप्लेन किया, जैसे काम ऑफिस का भी है, घर का भी करना है, काम नहीं आ रही है, देयर इज नो हाउस मेड कमिंग at home, you have to do double the work now, office work you have to manage and housework, and one a son you have at home, you need to spend time with him also. So all this while ये सब एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा कि प्रभु अपने को अपना ही कमी कितना है वो दिखाना चाहता है इस सारे सिचुएशन में। तो जहाँ जितना बन सके प्रभु ने बातें की कि करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए इनफ है, सब मैनेज हो जाएगा। अपने आप को कोसो मत, ग्रम्बल या कंप्लेनिंग किया उसको, उसे क्षमा मांगो और प्रभु से मांगो, वो शक्ति देता है सब काम करने के लिए। और प्रभु का वचन थोड़ा ज़्यादा पढ़ने मिला, पढ़ पाया, और इसमें थोड़ा बाइबल स्टडीज़ भी अपना ज़्यादा होने लगा, तो एक उससे प्रोत्साहन मिला। और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे अपने को जैसा चाहिए वर्क फ्रॉम होम या घर से काम मिले तो सब आसान होगा, ऐसा नहीं है। एक चीज़ है तो दूसरी चीज़ नहीं है। जैसे ऑफिस जाता था तो जैसे इच्छा थी कि वर्क फ्रॉम होम हो, तो वो पाने के बाद भी, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी वो सेटिस्फैक्शन अपने को नहीं देता है। तो जो भी सेटिस्फैक्शन है अपने को प्रभु में पाना है। अपने पाप जो भी प्रभु दिखाता है उसको कबूल करना है और क्षमा मांगना है, और आगे के जीवन में प्रभु में कैसे अच्छा बनूं सहायता मांगना है। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। जैसे ब्रदर विजय ने भी कहा, हस्बैंड लोग को रियलाइज़ होता है कि पहले रियलाइज़ नहीं होता है कि वाइफ पे क्या मतलब बर्डन रहता है, लेकिन घर पे रहने के बाद ये सीखने मिलता है। आमीन। See, हम लोगों भी for us, our family, as a family, this was a time God has brought us together. We should have more fellowship in the family. That was something which God did. As brothers have shared, I did not have to go to office, so we were most of the time at home. We could spend time in fellowship and prayer and many things. That's one thing. Other thing is I had a lot of time to spare, quite a bit of time to spare, in fact, and at least in some weeks to read the Word of God and listen to other messages, and also contribute to the welfare of the church, and meetings. That is something which it was a tremendous blessing. If you look at in a holistic way, this pandemic was a great blessing to us. Some things I felt we missed out. We lost something, because of this pandemic. But later on, I found that was another blessing. We never understood it was a blessing, but later on I found, if I look back today from March, I think 16 onward, we were at home. I found God does everything that happened was for good. When I look back, I really feel how well God has planned everything. So I see that for the church as a whole, all over the world, this was a great blessing if they had taken it rightly. This is a great example of how God works things good for His people. People who really wanted to grow in the Lord, they had tremendous opportunity because of this pandemic. See, another thing which came to my mind was, in our life, especially in the life of David, we could see sometimes he says that God is very far away, he is distant. Sometimes he says that God is very close. That is the life of a man according to God's own heart. Is a man who really followed God, who really loved God. He sometimes felt God is very distant when he really wanted God, but he sometimes felt God is very nearby. It's like a son goes with a father. When everything is all right, the father and son, father may not care much about the son. He can walk at a distance, no problem. But suddenly the son falls into a pit or something. He falls down. The father will come running and take him in his hand. He become very close to him. That's what I felt in his pandemic. When we needed God, God became very close.
to us. So that thank God for all this which God has taught us during this pandemic. That's praise God for this. ओके धन्यवाद करता हूँ मैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें इस मौका दिया है कि एक 4 मिनट के अंदर हमें बताने के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किया पिछले 6 महीनों में। सबसे पहली बात मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी भी मैंने खाना नहीं बनाया, मतलब कुकिंग नहीं किया मैंने पूरे जब से मैं बड़ा हुआ। मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ मेरे परिवार में, मम्मी डैडी के साथ मेरे बड़े भाई एक है और एक बड़ी बहन है। तो क्योंकि छोटा होने के वजह से मुझे बहुत लाड प्यार में मुझे कभी खाना वैसे बनाने का मौका नहीं मिला और मैंने किया नहीं वो काम। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब मेरा लॉकडाउन के एक्चुअली जुलाई 7 से शुरू हुआ है, जब मैं घर पर पहुंचा। आप सभी को पता है जैसे कि मैं शिप पे था। तो इस जब से मैं आया हूँ और तब से मैंने ये एक ठाना था कि नियति को मैं किस रीति से मदद कर सकूंगा करके। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। अगर एक मील भी मैंने उसमें बना लिया और वो एक बहुत ही अच्छा मदद मिल जाता है नियति को, क्योंकि उनको लिगामेंट टेयर है, आप लोगों को कुछ लोगों को पता है। और जब हम लोग दोनों जब शिप पे थे और हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे, जब ये कुछ हुआ नहीं था कोरोना वायरस का, तो हम दोनों साथ में से बातें करते थे कि इस बार जब छुट्टी में जाएंगे तो हमारे घर पे ऑलरेडी मेड आती थी जो झाड़ू और बर्तन के लिए आती थी। और मैं कहता था नियति को कि इस बार हम लोग ऐसा मेड रखेंगे जो झाड़ू बर्तन के साथ साथ थोड़ा खाना बनाने में भी मदद कर ले, ताकि और थोड़ा आसानी रहे नियति को, क्योंकि उसे खड़ा नहीं रहा जाता है बहुत लंबे समय तक के लिए लिगामेंट टेयर होने की वजह से। और परमेश्वर ने कैसे हमें नम्र किया, हमें खासकर मुझे नम्र किया कि मैं अभी अभी हमारे पास ऐसा समय आया है कि सभी काम हमें खुद से ही करना है। और कहाँ हम ये सोच रहा था, मैं ये बोल रहा था नियति को शिप पे कि चलो एक मेड रख लेते हैं जहाँ पे सब वो काम कर पाए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। अभी मैंने शुरू किया है पिछले 2-3 महीने में, जो भी टाइम गुजरा जिसमें मैं खाना बनाना सीख पाया। और ये सच में परमेश्वर का ही अनुग्रह है, क्योंकि वो ही है जो इस चीज को सफल कर पाए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों को पता है मैं कैसे शिप पर अटका हुआ था, और परमेश्वर ने उन दिनों में मेरे जीवन में कैसे एक आत्मिक रूप में मुझे बढ़ाया। और खासकर सबसे बड़ा अनुग्रह ये है कि मेरे जो काफी सारे जो कलीग्स हैं जो शिप पे अटके हुए थे, उन लोगों का शिप तो चल रहा था, मतलब उनको काम के साथ साथ एक इमोशनल नीड, वो जो बहुत तकलीफ हो रहा था, एक तो दूर है पैंडेमिक में, प्लस उनके पास काम का प्रेशर भी था क्योंकि काम नहीं रुका था। शिप्स तो रूट पे थे ऑलरेडी जो लोड डिस्चार्ज कर रहे थे, तो काम का भी प्रेशर वही इतना ज्यादा होता है कि उसके अलावा ये सब एक्स्ट्रा जो भी स्ट्रेस होता था वो लोग कैसे संभालते होंगे। पर मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि वो समय में परमेश्वर ने मुझे उस जगह पर रखा जहाँ पर जैसे सिम कार्ड, वो सिम कार्ड अवेलेबल था जिसकी वजह से मुझे इंटरनेट मिला। इंटरनेट की वजह से मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर पाया मार्च से, जब से मैं हमारी ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई है। और ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बात मैं अभी बताने वाला, वो जो मैंने सीखी है कि वो ऐसी चीज है कि मैंने ये एकदम बहुत ही करीबी से जाना है कि परमेश्वर पे पूरी तरह से कैसे निर्भय रहना है। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो एक असंभव को संभव करने वाला है। मैं आप लोगों को मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि कैसे कैसे समय में परमेश्वर ने ऐसे असंभव चीजों को मुझे उस परिस्थिति को संभव बनाकर मुझे लेकर आए। तो वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में था कि वो असंभव टाइम पर मुझे खाली एक ही चीज करनी थी जो मुझे परमेश्वर सिखा रहे थे, कि पूरी तरह से निर्भय रहना था परमेश्वर पर। और वो एक ऐसी चीज ही ऐसी ये पूरे 6 महीने में मैं इस पैंडेमिक में मैंने ऐसा चीज सीखा है कि अभी ऐसी कोई परिस्थिति आते है तो मुझे पता है कि पूरी तरह से निर्भर रहने का महत्व क्या है। वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। धन्यवाद। तो बस थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। मैं इन 6 महीनों में परमेश्वर को जानने में और खोजने में लगाया। मेरा एक राशन कार्ड था कि मेरे बहन के कार्ड में मेरा नाम था, वहां से मैं कट करके मैं मेरा खुद का बनाने के लिए मैं ये लेके आई थी।
तो फिर वो मेरे पास वो लाइट बिल वो सब नाम पे नहीं था, तो राशन कार्ड बना नहीं पाई। तो वो मैं फिर जब सब कुछ नाम पे हो गया तो मैं बनाने के लिए गई, तो वो रिसीट मुझे नहीं मिल रही थी जो नाम कट करके लेके आई थी। तो मैं उसको खोज रही थी, पिछले मैं 2 साल से खोज रही थी। तो मेरे मन में है कि मैं कहीं तो रखा है करके, लेकिन मिल रहा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खोजना नहीं छोड़ा है। फिर लास्ट में मुझे मिल गया कि 2 महीने पहले वो मुझे वो रिसीट मिल गई। तो उसी प्रकार मैं मेरे जीवन में परमेश्वर सब कुछ दिया है कि सब अच्छी तरह से संतुष्ट भारी चीजों के लिए जो मेरी जरूरत है सब कुछ मुझे बहुतायत से दिया है, और उसने मुझे संतुष्टि भी दिया है। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे परमेश्वर को जानना है और उनको खोजना है। तो यही मैं खोजने में मैं लगा रही थी। तो इसी प्रकार परमेश्वर हमेशा है। हम परमेश्वर इसी प्रकार परमेश्वर हमेशा है और हमारी प्रतीक्षा करते हैं। तो वो हमें विश्वास दिलाते हैं, मैंने नहीं इसमें लिखा है आइजाया 45:19 में लिखा है, मैंने नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। तो मुझे ये वचन में ये आया कि वो विश्वास दिला रहे हैं, तो मैंने उनको ढूंढने में समय बिताया। फिर हमें कभी कभी हमें मुश्किल भी लगता है कि परमेश्वर को कैसे ढूंढना है। तो तभी ये वचन में मैंने ढूंढना सीखा, और जहां उसे हमें देखना है, मैंने यही देखा कि जहां परमेश्वर हाँ इसमें है। मैंने यही अनुभव किया है कि मेरे लाइफ में परमेश्वर उसमें रहते हैं कि उनके वचनों में और हमारी प्रार्थनाओं में, उनके वचनों में, और हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को खोज सकते हैं कि मैंने खोजा है और परमेश्वर को मैंने जाना है कि वो कितने भले हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि ढूंढो तो तुम पाओगे, मत्ती 7:7 में लिखा है। वो वादा करते हैं, अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देते हैं। इब्रानियों 11:6 में लिखा है। इसीलिए हम खुश हो सकते हैं कि परमेश्वर वही है जहां उन्हें है। तो मैं उनकी भलाई को देखती हूँ कि इसमें भी लिखा है, नीति वचन 11 अध्याय और 27वें वचन में भी लिखा है कि यत्न से भलाई को ढूंढता है वो अनुग्रह पाता है। तो हमें उनको हम उनको ढूंढते हैं तो हम अनुग्रह मिलता है हमें, और हम आनंदित रहते हैं। उनकी भलाई को हम देख सकते हैं हमारे हर एक परिस्थिति में, हमारे हर एक इसमें। तो परमेश्वर ने मुझे आनंद से भरा जीवन दिया है, शांति आनंद से बहुतायत से दिया है। इस कठिन परिस्थिति में ना मैं किसी से मिल सकती हूँ, ना किसी से कोई मेरे को मिलने आ सकता है, लेकिन इसमें भी मुझे परमेश्वर ने बहुत आनंदित रखा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यही मुझे सिखाया है परमेश्वर, और मैंने प्रभु को जाना है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पहले हाय बोलती हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं सबको हाय बोलने का मुझे मौका मिला है। और इस लॉकडाउन में मुझे यीशु ने बहुत सिखाया है, मैं बोल सकती हूँ। और उनका हाथ मेरा चारों ओर मुझे देखने को मिला है, हमेशा देखी, और ज्यादा तरीका से वो हमको प्रोटेक्ट किया है। और जब ये इस कोरोना का स्टार्ट हुआ था तब से, मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे घर पे बैठने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिला। तो एक डरावना परिस्थिति में मुझे जाना, तो फिर मेरा अंदर सबसे स्टार्टिंग में एक ही वचन आया था, विश्वासी जो है रोटी से नहीं बल्कि विश्वास के साथ ही वो जिएगा। तो वो वचन मुझे दृढ़ किया है, हमारा जीना सिर्फ विश्वास के ऊपर होना चाहिए। बाहर कितनी भी गंभीर हालत क्यों ना हो,
परमेश्वर का वचन मुझे मेरा दिल को उत्साहित किया है, वो हमारे साथ है। और मुझे ये मिला है मेरा घर के अंदर, जब मैं जॉब पे जा रही थी, केवल मैं 20 दिन घर पे थी, उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया था, उसका पहला भी स्टार्ट था। तो जब मैं जाके आ रही थी, मेरे लिए तो बहुत लंबा सफर था जाके आने के लिए। हम लोग को ट्रैफिक बहुत मिलता था, मैं बहुत थके थके आती थी। तो मुझे ऐसा लगता था मेरा घर का हालात देखे क्या हो रहा है, बट मैं धन्यवाद मुझे ये देखने को दिया है परमेश्वर ने, एक आदमी होके आदमी से सब घर का काम या बच्चे को संभालना सब कुछ सही तरीके जैसा औरत कर सकती है वैसा उनसे नहीं होता है। जैसा बाहर का काम संभाल सकता है वैसा आदमी लोग घर को नहीं संभाल सकता है। बट मुझे परमेश्वर ने ये देखो बोला, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड वो इतना अच्छी तरीके से, भले चीजें इधर उधर पड़ा है उन चीजों को मत देखो, बट वो तुम्हारे लिए आने तब तक क्या करके रख रहा है। तो खाना तैयार है, बच्चा सही है, तो घर में सब कुछ रेडी है, तो उस वो चीजें देखेगा तुम्हारा अंदर वो प्यार आएगा। जब स्टार्टिंग में मैं मेरा घर को देखती थी तो गुस्सा आ जाता था मुझे, ये क्या हो रहा है, मैं उधर भी करूँ इधर भी करूँ, सचमुच में कुड़कुड़ाना लगती थी। तो मैं जब परमेश्वर के पास अकेला में गई तभी मुझे परमेश्वर ने ये डाला है, मैं देखने लगा मैं किससे सीखूं प्रभु, कैसा मैं ये सारी चीजों को सहन लूं, कैसा मैं ले सकती हूँ उनको। तो परमेश्वर ने बोला मुझे एकदम शांत किया है और वो प्रेम में लाया है मुझे, ताकि मैं घर का हालातों को नहीं देखूं, वो जो मेरे लिए कर रहे हैं वो सारा चीजों को देख के सचमुच हम लोग का अंदर वो प्यार और बढ़ने लगा। और सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जोसेफ को इतना अच्छा दिल दिया है घर को संभालने के लिए, बच्चे को संभालने के लिए और मुझे संभालने के लिए। इन 6 महीनों में तो ये बहुत मुश्किल है आदमी लोगों के लिए करने के लिए, बट वो काम करने के लिए उनको ताकत दिया। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु को। और मुझे ये सिखाया है सहना, ना ही घर में ना काम का, इधर भी मैं अकेली पड़ी थी, इधर 2 बच्चे हैं उधर 3 बच्चे हैं देखने के लिए, और उसके साथ साथ पूरा घर को संभालना है। तो मुझे उधर भी जाके ऐसा ये होने लगता था, क्या ये बच्चा मेरा है क्या, मैं घर में चलते तो मेरा पीछे पड़ने लगते थे वो लोग। तो ऐसा मेरा अंदर एक चिड़चिड़ाहट की आत्मा पैदा होती थी हर समय। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत शांत किया है। मैं कई बार गाड़ी में जाते समय ना मैं रोज वचन सुनती हूँ। मते ब्रदर ने मेरे को बाइबल जुना करार का और नया करार का भी उन्होंने भेजा, तो बहुत वचन के थ्रू बहुत वचन ब्रदर हमेशा भेजते रहते हैं। मैं उनका वचनों को हमेशा सुनती हूँ, बाइबल तो नहीं पढ़ सकती थी बट उनके थ्रू मैं, सॉरी मैंने ज्यादा समय लिया, और इसके थ्रू मैं बहुत एंकरेज हुआ और मेरा अंदर का वो चिड़चिड़ाहट गया यीशु के नाम से। I want to thank God for His faithfulness to me and to our family. Actually, what happened was in March, before the lockdown had started. That time, my husband had gone to Bangalore for some official work for about a week, and during that time only we had the painting work had started in our house. So I was alone with 2 kids, and it was I was almost in my 8th month, and so from that time onwards, we were like their exams also were going on. How I started seeing God's hand every day, but especially during those days when Sandeep was away, their exams were going on and the painting was going on, and I was alone, and pregnancy also. So somehow we managed, and then just when the painting work got over, that time Sandeep came back. And since we were, our initial plan was to go to Vellore. I thought, and Sandeep would be alone here. So we were in the process of clearing up all the things in the fridge and other things. And that was the time people started going to the market, D-Mart or Metro, and started buying like bags of rice and atta and whatever. But I was not preparing like that, because I had thought we'll be going to my brother's place, and I don't need to do that.
and then the it so happened everyone knows how the lockdown started. It started very abruptly, so we couldn't plan to go. Also, we couldn't go. We got stuck here, and our kitchen was absolutely empty. We didn't have any resources, and I was really. Apart from other things, I was thinking, what will I feed my children? That day, God spoke to me through the verse in Exodus chapter 23. And it says, His blessing will be on you, food and water. And truly, God has been faithful in providing for everything, especially food during that time. For our kids, we were able to eat. As compared to other people who are dying of starvation, we have God has given us good food to eat, and also like everyone was, many people were supposed to work from home, but my husband had alternate day work from home, and although he was working alternate day, he used to do a lot of household work because I couldn't do much, and be it washing the vessels or cleaning the floor, cooking especially. So that way, as a couple, we were able to get along better, and then delivery. Everyone knows what happened. It was I. There was a time that even the hospital where I was going for checkup, that also was closed. So for a few days, I was wondering, well, like I can't go to my brother's place. There's I can't travel anywhere. And the hospital where I wanted to show, where I was going initially, that also was closed. So I almost thought that maybe whether I'll be delivering at home or what, but God has been faithful in making things fall into place exactly. And it was good that the hospital where we had chosen for checkup was so nearby, and the delivery happened so smoothly. Like many people, you would have read in the news that how so many that during lockdown, many pregnant ladies were affected because they were not able to access healthcare at that time. But God has been faithful to me, and brother George and brother Matthew were trying so much. They were holding us emotionally and through prayers, and my parents were trying so much to come. We had booked repeatedly. We had booked flight tickets as and when they were closing the lockdown, but the tickets were getting cancelled. And people in our church, Sister Lalita also offered to come, but in the end, without anybody being there, God was there with me and with the kids at home, and the delivery happened smoothly. And I want to thank God for that. And also during this lockdown, before the lockdown, we were thinking that we would change David's school, but when the lockdown happened, we had lost hope. We didn't think that would materialize, but by God's grace, even that happened. That God gave David admission in a good school that we are very happy with. So really, through this entire lockdown, we have been a witness to God's faithfulness in amazing ways, and God has blessed us with good health, and and even enabled my parents to be here through this time, to travel in spite of their health and other restrictions. So we want to thank God for that, and thank God for the church who've been upholding us personally in their prayers. Praise God. I'm grateful to God for all the mercies that He has shown to my daughter and her family, and also to the church for a great moral and emotional support to them during these 6 months. We tried so many times, we booked our tickets so many times, and all the flights got cancelled. So the result that we could not be there during the time. And God wanted us to be out so that He can show us how smoothly, how efficiently, how
miraculously he would work. I mean, when Muhammad and Sandeep went for delivery, leaving the two kids while sleeping at home, I was so panicking. I was so worried. But God was so gracious. David got up, and when Daniel, the younger fellow, got up, he looked after him. And then by the time the delivery got over, at 10:30, Sandeep comes home and picks up the two boys and takes them home, takes them to the nursing home, shows their baby sister, and they were so excited. And when my daughter has come back with the baby, he was telling their mother, "Mummy, never do this again. Don't leave us." So great was God, so gracious was He to the two which His angels were virtually managing the affairs as Sandeep and Tali were away at the nursing. I want to praise God for all the mercies He has shown. And I thank God for the wonderful, caring church and fellowship that we have. During this COVID time, all the 7 of us, we were staying with my second son in Willow. All the 7 of us were infected with COVID. We were all COVID positive. And by God's grace, home quarantine and just taking the other necessary medicines and precautions, we could all come out, and now we are all COVID negative, and therefore we could travel from Vellore to Mumbai, and continue to pray for us that God will keep us in good health so that we might be a source of blessing for all of us, for all the children and grandchildren, and for the church at large. Praise the Lord. Thank you. प्रभु की स्तुति हो। मैं ये 6 महीने की समय में कई बात प्रभु ने हमें सिखाया, मुझे सिखाया। खास करके एक दो चीज मैं बांटना चाहता हूँ कि एक ब्रदर मैथ्यू ने मुझे एक मीटिंग मॉडरेट करने के लिए मौका दिया था। मैं तो हाँ बोल दिया था, लेकिन मैं जब मॉडरेट कर रहा था, जस्ट एक आधा घंटा मॉडरेट करने का समय था, लेकिन मैं सिर्फ कह दिया कि मैं कर दूंगा, कुछ दिखावा करने के लिए कर दूंगा, लेकिन उसके पीछे कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसके पीछे क्या चीज संभालना पड़ता है। जब मैं मॉडरेट कर रहा था मीटिंग, तो मैं जायरा और जोशुआ को, अपने बच्चों को एक जगह पे बैठने के लिए कहा, आधा घंटा मेरे पास मत आओ, क्योंकि मुझे एक मीटिंग को पूरी तरह से संभालना है, ये जिम्मेदारी निभाना है। तो लोग वो हो तो दोनों ने बोला हाँ हम लोग हॉल में बैठेंगे, आप मीटिंग मॉडरेट करो। जैसे मैंने मॉडरेट करने लगा, एवरी 2 मिनट्स एक बच्चा आके बोल रहा था कि डैडी मुझे खिला दो, एक बच्चा आके बोल रहा डैडी मुझे खाना दो, और वो बोल रहे कि मैं बोला उसको डांट रहा था, आप लोग जाके हॉल में बैठो, मैं मीटिंग मॉडरेट कर रहा हूँ। वो लोग हाँ बोले, वापस आके बोल रहा था डैडी कुछ खाने के लिए दो, वापस 2 मिनट में। और वो दूसरा बच्चा आके बोलते थे डैडी मुझे कुछ पीने के लिए दो। मैं सोचा कि कितना पेशेंट मुझे इस प्रभु ने दिखाया कि जैसे कि बाइबल में लिखा है कि अगर आपके पास बुद्धि कमी है, धरती में सबसे छोटी जानवर जो चिट्टियां के पास जाओ, उसी तरह अगर आपके पास पेशेंट नहीं है तो मैं तो कहूँगा ये छोटे छोटे बच्चे जो प्रभु ने हमें दिया है, उनसे बहुत सारा पेशेंट हम सीख सकते हैं। एक चीज है, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले जितने लोगों को मैं मेरे बड़ापन के लिए नहीं बता रहा हूँ, जितने लोगों को मैं हेल्प नहीं कर पाया, मतलब जब तक सब कुछ सही है, नौकरी सही है, जॉब सही है, सैलरी टाइम पर आ रहा है, लेकिन किसी को भी हेल्प नहीं कर पा रहा था लॉकडाउन से पहले। लेकिन एक 6 महीने में अंदर कड़क लॉकडाउन में, जब उम्मीद भी नहीं थी, जब कई लोगों को नौकरी जा रहा था, लेकिन किसी किसी को सैलरी नहीं था, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस 6 महीने के टाइम में प्रभु ने मेरा काम को इतना आशीषित किया है। लॉकडाउन से पहले जितने मैं हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन इस लॉकडाउन के समय में जो जरूरतमंद वाले बहुत लोग मेरे पास आए थे, ये मेरे बड़ीपन के नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूँ। कई लोग मेरे जहाँ रहता हूँ उस अपार्टमेंट में, कई लोग कभी कभी चावल के लिए आते थे, कई लोग तेल के लिए आते थे, कई लोग बोलते थे कि कुछ पैसे के लिए आते थे,
लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, जो जो जरूरतमंद मेरे पास आया है सबको देने के लिए प्रभु ने मेरा हाथ सचमुच बड़ा किया है, ये भी इस तकलीफ के समय में। तो ये चीज मैंने सीखने को मिला कि इन्हें प्रभु अपने बच्चों को हाथ को कभी कम में नहीं रखेगा, वो हमेशा दूसरों को देने के लिए हमेशा तैयार रखेगा, जैसा कितना भी तकलीफ वो समस्या हो। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सिस्टर ललिता का जो इतना ब्लेसिंग है उसके काम में, सचमुच मैंने देखा कि मैं सोचा कि मुझे मिलना चाहिए था इतना, यानी मैं काम करना चाहिए था, मुझे इतना सैलरी मिलना चाहिए था, मैं बाहर जाके 8 घंटा काम करना चाहिए, लेकिन प्रभु ने कुछ विपरीत काम किया। लेकिन अल्टीमेटली मैं प्रभु का हाथ हम दोनों के जीवन में देखा। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज गॉड। और जो भी परमेश्वर ने लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को सिखाया, बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन अभी मैं बोलने के लिए बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जब मैं कुछ शेयर करने जाती हूँ तो मुझे उस समय में कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। तो जो भी मुझे अभी परमेश्वर याद दिलाएंगे तो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। पहले तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि अपने पूरे मन से परमेश्वर पे मैं विश्वास कैसे रखूं। और अगर शायद ये लॉकडाउन नहीं होता, जैसे ब्रदर बांट रहे थे कि 100 सालों में एक बार शायद ऐसा मौका मिला रहेगा कि हम लोगों को कि हम घर में रह के ही अपना सारा काम करें और अपने परिवार के साथ इतना समय बिता पाएं। तो परमेश्वर ने मुझे ये भी सिखाया कि कैसे अपने हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर की ओर अगर हम देखेंगे, जैसे वचन में लिखा है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया इस वचन के द्वारा। ये वचन हमारे घर में एक्चुअली एक वॉल हैंगिंग के रूप में भी है। तो मैं जब भी ये देखती थी तो परमेश्वर को धन्यवाद देती थी कि हाँ परमेश्वर आप मुझे स्ट्रेंथ देंगे, मेरा जो भी परमेश्वर ने काम मेरे लिए छोड़ा है उसके लिए। और एक समय ऐसा था कि मैंने परमेश्वर से मैंने मांगा कि परमेश्वर मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक अच्छी वाइफ बनने में आप मुझे मदद करो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैंने एक बार सिर्फ इतना ही मांगा कि मुझे भले ही अब ऑफिस में एक अच्छी कलीग नहीं बन पाऊंगी तो चलेगा, लेकिन एक अच्छी वाइफ बनने के लिए आप मेरी मदद करो। तो उस दिन ऐसे हुआ। फिर उसके बाद मैं नॉर्मल काम कर रही थी और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि सिर्फ तुम्हें एक ही चीज की जरूरत है सीखने की, कि जो हस्बैंड है वो एक परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई अथॉरिटी है। तो जब वो जो पवित्र आत्मा की आवाज ने मुझसे बात की, तभी मुझे लगा ये बात तो मैं जानती तो थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझसे वो बात बोली तब मुझे लगा कि ये कितनी नई बात है मेरे लिए। ये बात मैंने चर्च में इतने सालों से मैं सुन रही हूँ, शादी को 8 साल हो गए, तो मैं 8 साल से ये बात सुन रही हूँ, लेकिन जब वो बात पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की तब मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए एकदम नई बात है। तो मैं उस दिन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को, और मैं चाह रही थी कि उस दिन की मैं डेट नोट डाउन करूँ कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात बोली है। तो मैं ये इसलिए मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि अगर हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे कोई भी हमें कमी घटी है, तो परमेश्वर उस बात, और हम पूरे मन से मांगेंगे परमेश्वर की आपकी इच्छा के अनुसार चलने में आप हमारी मदद करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर हमारी मदद ना करे। और मैंने देखा है कि कोई भी डिजायर्स भी मैंने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिए कि मुझे अभी परमेश्वर आप ही चाहिए और कुछ डिजायर नहीं है। तो जो पुराने डिजायर्स मेरे थे वो परमेश्वर ने मेरे लिए किए। कुछ ऐसी बातें थी जिसमें मैं अगर मेरे हस्बैंड से एग्री नहीं हो रही थी, तो मैंने देखा है कि जब मैंने छोड़ दिया उसको परमेश्वर के ऊपर, तो खुद सामने से आके परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड के मन को भी बदला, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। Amen. मैं भी हमारे परिवार की एक गवाही देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमारे परिवार को भी इस लॉकडाउन के बीच में अद्भुत रीति से चलाया और संभाला। और घर के काम करने के विषय में मैंने जैसे भाइयों से सुना, जो हमारे बीच में भाई हैं, उनके लिए एक नया अनुभव था। मेरे लिए इतना नया अनुभव नहीं, घर के कामों में नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती है तो हम बचपन से ही घर के कामों को करते हुए आए थे। तो अजीब नहीं लगता था कि एक मर्द या एक लड़का पुरुष होने के कारण हम घर के काम में हाथ लगाते। लेकिन पिछले 1.5 साल से मेरा जीवन ऐसे हो गया था कि बहुत आलसीपन मेरे जीवन में था और मैं बहुत लापरवाही के साथ अपने सारी कामों को, बातों को करता था।
और सोने के मामले में इतना आलसी था, मैं बहुत ज्यादा सो जाता था। और मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद जब मैं पापा को काम में हाथ बटाता तो मैं 11 बजे तक, 11:30, 12 बजे तक मैं दुकान को जाता था। और मम्मी और मेरा भाई मुझे बहुत चिल्लाते और बोलते कि आगे तेरा जीवन कैसे चलेगा और प्रभु तेरे को मदद करे और तेरे जीवन में बदलाव को लाए। और वो मुझसे परेशान थे, मुझसे बहुत चिढ़ते थे और शिकायतें करते थे। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया कि मेरे अंदर पता नहीं अंदर से एक इच्छा आ गई और मैं समय पर सुबह उठने लग गया। अपना अलार्म जो मैं लगा था, मैं रात में परमेश्वर से कहता, परमेश्वर मुझे अपने समय के अनुसार आप उठाना। तो परमेश्वर उस अलार्म के बजने से 5 मिनट पहले ही मेरी आंखों को खुलवा देते थे। और ऐसा होता था कि मेरा सारा काम, घर का जो कुछ भी काम सुबह करना रहता था, मम्मी लेट उठती तो परमेश्वर मुझे करने के लिए मदद करते थे, अनुग्रह देते थे। और अब ऐसा हो गया कि मुझे इसकी आदत सी पड़ गई। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये एक अनुशासन के रूप में लाया और अब मुझे आदत बन गई कि अब मैं अपने आप से ही सुबह उठ जाता हूँ बिना किसी की मदद के। तब मुझे भाई और मम्मी ऐसा कहने लगे कि अरे तू इतना सुबह जल्दी क्यों उठता है, सबसे ज्यादा जल्दी उठने की तुझे जरूरत नहीं है, अब तो थोड़ा और सोकर आराम कर लिया कर करके वो मुझे ऐसे कहने लग जाते थे। और परमेश्वर का मैंने एक अद्भुत कार्य ये भी देखा कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से चलाया। हम एक सेकंड के लिए सोचते थे, 2-3 महीने हमारी दुकान भी बंद रही, कोई आवक नहीं थी, इनकम नहीं हो रही थी और हम देखे कि परमेश्वर कैसे चलेगा। लेकिन हमारी हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। एक समय भी ऐसा नहीं रहा कि हमारे पास खाने को नहीं था या हमारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा नहीं किया। मैं गवाही देना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बहुत आयत से चलाया हमें जरूरतों को पूरा किया। और इनके बीच में परमेश्वर ने यह सहायता की कि हम अपने पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और उसके पीछे चलते रहें कि परमेश्वर हमें इस महामारी के बीच में से लेकर जाएंगे और चलाएंगे। साथ में मेरे पापा हमारे साथ समय नहीं बिताते थे, हमेशा दुकान काम में रहते थे। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में उन्होंने भी हमारे साथ घर पर रुककर, हम मम्मी के साथ रुककर देखा कि परिवार के साथ समय बिताया, परिवार का मूल्य जाना, महत्व जाना। और मीटिंग्स में वचनों के द्वारा भी परमेश्वर ने काफी आशीषित किया। तो इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले, आदर मिले। हम लोग का काम चालू था, लेकिन मैडम नहीं था घर पे 3-4 महीना। हम लोग जाते थे, खाना डाल के बैठ के आते थे, थोड़ा काम करते थे लेकिन इतना नहीं करते थे। फिर 3 महीने के बाद मैडम आई, चिल्लाई, बोलते कुछ साफ नहीं किया, बोलते क्या कर रही थी तुम लोग। फिर उसने 1 महीना नहीं बुलाया काम पे। और 1 महीने के 20 सारा को बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया। तो मैं इतना डर गई, रोने लगी, ओके प्रार्थना गई, प्रभु मुझे काम दो। मैंने घर के लिए कर्जा निकाला, लेकिन इस कर्जे में अपनी प्रार्थना ने पूछा मैडम को, लड़ा को बुला, मैडम बोले हाँ बुला बोलते। तो मैंने धन्यवाद दिया यीशु को, मैडम मुझको बुलाता है, मेरा काम चालू गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आमीन बोलती हूँ। Praise God. During this lockdown period, we experienced as a family so many miracles which we probably didn't recognize before this. I thank God. We also experienced God much more nearer than any other time. And I thank God that this lockdown has proved as a blessing for us. Family relationship improved. We both husband and wife, we got time to cook many dishes together. I learned many recipes also, and I tried by God's wonderful grace. I always thought that God make me a woman of Proverbs 31. That was getting instilled. Though I am not of that type, but still God gave me a desire to be of that sort. I thank God for that. And the other thing is, I rarely called up anybody on phone. These are not the times that during olden days we had to literally dial the numbers. Now we don't have to dial the numbers. We have WhatsApp call also. So I wouldn't call anybody telling it to my elder daughter that I don't have time, I'm very busy. Once my elder daughter told me, Mommy, if you don't have time for others, a day will come when others will have no time for you.
So that always used to come in my way, and I literally used to take during this lockdown period. By God's wonderful grace, God helped me to take time out to call people, especially sisters, and inquire just even 2 sentences. How are you? If I cannot call, at least a message. Otherwise, if I don't call, I used to feel very bad. So in between, I will come and quickly put a message and go back and start cooking or something like that. God has been very gracious. And one last thing is, um, I used to be a person when I'm sick, I used to run to doctor. Now this was not possible during lockdown period. So now I started running to God. And God, Father, please heal me. I have, you know very well, God arranged situation where I cannot go to doctors. And in such a way, I went to Father and He healed me. So this is what I experienced during this period. And I'm extremely grateful to God that in spite of us not being faithful, God has been faithful to us. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा लड़का ऑटिज्म पेशेंट है, वो बात नहीं करता है, तो मैं उसको थेरेपी के लिए लेके जाता था हर बार, और उसका स्पेशल स्कूल में ये है, प्लस मैं बाहर से भी उसको थेरेपी देता था। तो एक आदमी लॉकडाउन के पहले मुझे मिला था, उसका लड़का भी ऑटिज्म था, लेकिन वो बड़ा था। तो उसने एक बात कही मुझे कि ये अगर 6 साल की उम्र में बात नहीं करते लड़के लोग, तो कभी जिंदगी में बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं हंसा, मैं बोला परमेश्वर की इच्छा है कि ये 10 साल की उम्र में भी बात करेगा लड़का मेरा। तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया और कुछ थेरेपी ने, कुछ स्कूल ने, मैं सोचने लगा अभी ये कैसे ये करेगा। लेकिन और उसको मैं हर बार लड़के को घूमने लेके जाना पड़ता था मुझे। दिन में 2 बार मैं उसको बाहर घूमने लेने, वो इतना हाइपर है कि उसको लेके जाना ही पड़ेगा, ऐसा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको इतनी समझ दी कि एक बार उसको लॉकडाउन में उसको ऐसा बाहर लेके गया तो समझ गया कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके बाद उसने कभी जिद नहीं की बाहर जाने की। प्लस वो इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने उसके अंदर इतना कार्य किया, वो खुद ब खुद एक बार टाइल्स पे, लादी पे लिख रहा था, जेड से उसने स्टार्ट किया। मेरे को ऐसा लगा वो ऐसे ही कुछ लिख रहा है, उसने जेड से ए तक उल्टा लिखना चालू कर दिया। मैं हैरान हो गया। मैं उसने उसका वीडियो निकाला कि उसने उसके बाद वो बोलना चालू कर दिया आहिस्ते आहिस्ते। आज वो ए टू जेड कंप्लीटली बोल देता है, किसी के हेल्प के बिना। परमेश्वर उसमें, ये लॉकडाउन में बोलते हैं विदाउट थेरेपी, परमेश्वर ने उसके अंदर इतना कार्य किया कि मैं सोच ही नहीं सकता। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Amen. Amen. There are some things God taught me during this time, and that is first thing is God taught me to save money. And I, suddenly during this pandemic, many suffered with money problems, and God taught me is to save money when you have time, and when you have this, we don't know how when will be the situations, what are the situations be like, but we need to save money when we have, instead of spending all it. And that is the one thing. And second thing is during this I don't have any work from home because I'm an mining engineer, and we need to work in underground's workplace. And so I stayed in home only. And what I did is I read from Romans book of Romans to Jude, all books. I read a letter as a letter. It means one day I read Romans 16 chapters at once, 4 to 5 hours, and again next day 1 Corinthians and 2 Corinthians 13 chapters at once. Means it gave me so much blessing. Means I really understand the word of God very in an amazing way, and why Paul wrote that letters, and what God wants to deal with the church. And I didn't read just like a newspaper, but I read
very carefully. I didn't neglected any verse or skip any verse when I don't understand. I read every verse carefully by using, I try to understand it with various translations and all that. But it really amazing experience when I read those all letters as a letter, complete letter at once. And second and third thing is, I was suffered sickness due to 30 to 40 days nearly, and it was so much. My body was so weak and so much difficult circumstances, and I started a fever and vomitings and heavy weakness and chest pain. And one day I was suffered with so much chest pain in my and that night I thought I would die that night. But suddenly a thought came into my heart and that thought hit me so much. That is why I came to this world, and what is the purpose? Why God placed me in this world? And when I began to think about those words, I got really, and that pain, I was relieved so much from that pain immediately. And then I understood why God allowed this pain. He wants to think about His will, and that thing helped me to see God's will in very different way that time. And after 10 days, I was almost recovered. Suddenly, my sister is tested with positive, COVID positive, and I was it was so much difficult situations, and she had breathing problem, going to taking her to hospital, again coming to home, and again had breathing problem, again going to hospital and discharging, and again coming to hospital, again breathing problem, again so much. It was so much distress and depressed I am, and I was. It's like going in the wilderness and walking in the dark valley. But God is faithful, and I trusted Him. And God wanted me to exercise faith and patience in all the situations. And I was, and after the thing again, I was suffered with typhoid. But all these situations, 30 to 40 days, I was sick. But God is faithful, and inside I have fears, and outside there is conflict. Paul says, but God comforts the depressed. But God everything allowed for my good, and He wants to allow. One brother, one godly man says, God will not remove the difficult situation or trouble until He removes impatience from you. Because God wants to remove impatience from me. He wants to exercise patience, and He wants to exercise faith in His sovereignty, and exercise His love and experience His love. Thank you. God help me to write 9 in lockdown. I prayed to God. Now I can write 9 Sida. Wow. Praise God. So now, I was telling that I am really blessed to hear the testimony from brothers and sisters and what God has been doing in their life. So many participation I've seen, so very happy to see that. And secondly, the discipline in timekeeping, the time which was allotted to us 4-minute times, and everyone completed their testimony in that time. So very happy to see that also. So I would like to thank all brothers and sisters who shared the testimony. It was great experience for me, and I believe for all of us now.